بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ معاملہ تخلیق آدم کے موقع پر پیش آیا تھا۔ اس وقت جس طرح فرشتوں کو جمع کر کے انسان اول کو سجدہ کرایا گیا تھا اور زمین اور انسان کی خلافت کا اعلان کیا گیا تھا، اسی طرح پوری نسل آدم کو بھی جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے بیک وقت وجود اور شعور بخش کر اپنے سامنے حاضر کیا تھا اور ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت لی تھی۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ دیکھو، اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیت تدبر، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زمین لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ ہائے، پہلے کی تاریخ کے مختلف اشخاص پر اس مثال کو چسپاں کیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خاص شخص جو پردہ میں ہے تو اس تمثیل میں پیش نظر تھا۔ البتہ یہ تمثیل ہر اس شخص پر چسپاں ہوتی ہے جس میں یہ صفت پائی جاتی ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو کتے سے تشبیہ دیتا ہے جس کی ہر وقت لٹکی ہوئی زبان اور لپٹی ہوئی رال ایک نہ بجھنے والے آچھے ہرس اور کبھی نہ سیر ہونے والی نیت کا پتہ دیتی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ یہ اتنی بری مثال جو انسانوں کو دی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ بار بار ہم پڑھے نا پیچھے کہ مال کی محبت جو سی ہے وہ انسان کے لیے کتنی تباہ کن ہے۔ مال کی محبت آخرت سے بھلانے کا باعث بنتی ہے، بخل کا باعث بنتی ہے، خود غرضی کا باعث بنتی ہے۔ یہ تو ہم آپس میں ایک دوسرے بہن بھائی مال کی محبت میں ایک دوسرے کو کیا کچھ کر ڈالتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی بری ترین انسان کے لیے مثال اللہ نے رکھی ہے کہ جو انسان اللہ کے ہدایت، اللہ کی رحمت اور روح کے آ جانے کے باوجود بھی دنیا کی طرف اتنا راغب ہو جاتا ہے جیسے کہ ایک کتا جو سے اس کی زبان ہر وقت لٹتی رہتی ہے اور لگتا ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے، ہرس اس میں نظر آتی ہے۔ تو ایک انسان جو دنیا کا حریص بن جاتا ہے اس کے دماغ میں ایک ہی چیز حال میں رہتی ہے، حل من مزید، کہ مجھے اور مال کیسے بن جائے، میں اپنا ماس بینک میں رکھ دوں، وہاں میرا مال بھی محفوظ رہے اور مجھے اوپر سے پیسے بھی آتے رہیں، اور اس سے پیسے اتنے زیادہ آئیں کہ بس میرے ہاتھ پر پیسے ہی پیسے ہو جائیں۔ اور گن گن کے رکھتا ہے، اللہ نے اس کو بھی کریہ قرار دیا، جب ہم گن گن کے رکھیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو وہ ناپاک مال بن جائے گا، ہماری تباہی کا باعث بن جائے گا۔ اور جو مال بڑھتا جائے گا ہمارے اندر ہرس و ہوس بھی بڑھتی جائے گی۔ جب دنیا کی ہرس و ہوس بڑھے گی تو آخرت سے تعلق ٹوٹتا جائے گا، کیونکہ جو میرے پاس بہت مال ہوگا وہ میری فوکس یہی ہو جائے گا دنیا ہی، اس کو کیسے میں بچاؤں، اس کو کیسے بڑھاؤں، میں کیا کیسے بناؤں، اس چیز نے کیا مجھے کیا آخرت سے غافل کر دیا۔ اس لیے یہ صفت تباہ کن ہے کہ اگر ہم اللہ سے مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرہ حسنہ، اللہ مجھے دنیا کی بلائیاں بھی دے آخرت کی بلائیاں، تو جو آپ نے آخرت کی بھلائیاں بھلا دیں تو دنیا کی بلائیوں سے بھی محروم ہوگے، کس کی وجہ سے؟ حرص و ہوس کی وجہ سے۔ اور یہ بدترین مثال جو انسان کو دی گئی ہے، یہ ہمارے لیے بڑا ایک وارننگ اور تنبیہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے
नूर से भर। कुरान दे अल्लाह हमें, अपने इबादत के तरीके सिखा अल्लाह हमें, किताबुल्लाह के रस्तों पे फिक्र दे, जन्नत की खरीदारी उसको लौट के जाने के ख्याल में हमें हर लम्हे रख, और हमें मौत याद रहे, ताकि हम दुनिया को अपना मकसूद हयात ना बनाएं। तो जिन लोगों ने दुनिया को मकसूद हयात बनाया, अल्लाह ने उनके लिए एक बुरी तरीन मिसाल दे दी है। कोई बंदा था ऐसा, लेकिन उसका नाम नहीं मेरे रब ने लिया। यही मिसाल है इन लोगों की जो हमारी आयात को झुठलाते हैं। तुम ये हकायात इनको सुनाते रहो, शायद कि ये कुछ गौर व फिक्र करें। बड़ी ही बुरी मिसाल है ऐसे लोगों की जिन्होंने हमारी आयात को झुठलाया, और वो आप अपने ही ऊपर जुल्म करते रहे हैं। जिसे अल्लाह हिदायत बख्शे, बस वही रास्त पाता है, और जिसको अल्लाह अपनी रहनुमाई से महरूम कर दे, वही नामुराद नाकाम होकर रहता है। अब ये देखिए कि यहाँ ऐसे पता चलता है कि अल्लाह ही हिदायत भी दे रहा है और गुमराह भी कर रहा है, लेकिन इसके अंदर जो एक्चुअल रूह है बात की, वो ये कि अल्लाह ताला ने फ़अल्हमहा फजूरहा व तक़वाहा, तुम्हारे अंदर बुलाई भलाई और बुराई की तमीज अल्लाह ने रख दी। अब ये दुनिया बन गई हमारा इम्तिहान का टेस्ट बन गई। अब मेरा रब उसी ही को हदायत देगा जो हदायत का तलबगार होगा, उसी को कुरान देगा जो कुरान से मोहब्बत रखता है और इसकी तलब करता है, इसके पढ़ने सीखने सिखाने में शौक रखता है। तो जो इसकी तवज्जो नहीं रखते, अल्लाह उनकी तौफीक ही छीन लेता है। ये इसका एक्चुअल मकसद। सिर्फ हम ये ना समझ लें कि ये अल्लाह ताला ही खुद ही इधर करते हैं, खुद ही उधर नहीं। हमारे अंदर से जो चीज़ उठती है, उसको फिर अल्लाह की तरफ से रहमत और बरकत से वो पनपती है, बढ़ती है, और उसी रास्ते को हमारे लिए फिर आसान कर देती है। तो ये अल्लाह फरमा रहे हैं। और ये हकीकत है कि बहुत से जिन और इंसान ऐसे हैं जिनको हमने जहन्नुम के लिए पैदा किया है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा ला तअजिरना मिनहुम। इनके पास दिल हैं, दिलो दिमाग हैं, मगर वो इनसे सोचते नहीं। इनके पास आँखें हैं, मगर वो इनसे देखते नहीं। इनके पास कान हैं, मगर वो इनसे सुनते नहीं। वो जानवरों की तरह हैं, बल्कि इनसे भी ज़्यादा गए गुज़रे। ये लोग हैं जो गफ़लत में खोए हुए हैं, तदब्बुर। यहाँ 2 हकीकतें साथ-साथ चल रही हैं। देखी हकीकत, अनदेखी हकीकत। एक रूहानी आँख है, एक जिस्मानी आँख है। अल्लाह की हदायत का ज़्यादा ताल्लुक सुनने से है। रूहानी आँखें बंद हो जाएँ तो फिर कान भी बंद हो जाते हैं। ये याद रखो कि अल्लाह ताला ने ये 2 चीज़ें जो हमारे लिए रखी हैं, इनमें हमें ज़िंदगी किनके पास है? जिनके पास रूहानी आँखें हैं, रूहानी दिल हैं, रूहानी कान हैं, कि वो अल्लाह की बात को, नूर को सुने अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो उसको पा कर के तो अपनी ज़िंदगी को सँवारे। लेकिन अगर हमारे पास बसीरत की आँख ही नहीं रहती, तो हम कभी भी उस सच्चाई को नहीं पा सकते जो अल्लाह ने ज़मीन में हमारे लिए उतारी है। और कान, ये देखो जब कान बंद होते हैं तो ज़ुबान खुद ही बंद हो जाती है। अल्लाह ज़ुबान का भी तज़किरा फरमा रहे हैं ना, तो ये भी एक प्रैक्टिकल है हमारे सामने कि जो कोई बहरा हो जाता है वो बोलना भी छोड़ देता है, उसको सुना ही नहीं जाता, बोलेगा क्या? तो अल्लाह अकबर कबीरा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हिस्सी इज़ा इनको बोलते हैं, तो महसूस करने वाले। तो जब ये नूर को महसूस करते हुए अंदर दाखिल करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंसान एक बेहतरीन मुस्लिम बन जाता है, जो अपनी ज़िंदगी को इस नूर की राहों में चला करके तो इन मादी चीज़ों का बेहतरीन मुसर्रफ करता है। अब ये देखो, मुझे बसीरत आई, मुझे समझ आई कुरान की, तो मुसर्रिफ किसका है? इन आँखों का जो चेहरे पर है। ये पढ़ रही हैं, और इसकी जो रूहानियत है वो मेरे अंदर दाखिल कर रही है। कौन? बसीरत की आँखें। तो इस तरह हर जौन-सी ये चीज़ें उतने, इनके 2-2 हकीकतें हैं अल्लाह ताला की तरफ से, एक रूहानी और एक जिस्मानी। अल्लाह अच्छे नामों का मुस्तहिक है, इसको अच्छे नामों से पुकारो, और उन लोगों को छोड़ दो जो इसके नाम रखने में रास्ते से मुनहरिफ हो जाते हैं। जो कुछ वो करते हैं इसका बदला वो पाकर रहेंगे। हमारी मखलूक में एक ग्रोह ऐसा भी है जो ठीक-ठीक हक के मुताबिक हदायत और हक के मुताबिक इंसाफ करता है। रहे वो लोग जिन्होंने हमारी आयत को झुठला दिया है, तो इन्हें हम बतदरीज ऐसे तरीक़ा से तबाही की तरफ ले जाएँगे कि इन्हें खबर तक ना होगी। मैं उनको ढील दे रहा हूँ, मेरी चाल का कोई तोड़ नहीं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन। अब यही देखें कि जब फ़िरौन को अल्लाह ने तबाह करना था, तो कैसे आहिस्ता-आहिस्ता, चलता-चलता वो खुद ही अपनी तबाही, मौत की तरफ चला गया और तबाह व बर्बाद हो गया। तो अल्लाह ताला ने किस तरह उसको असबाब से
किस तरह निकलने से सारी वो अपनी कौम को, अपने लश्करों को, सब लेकर के निकलता है खुद ही। अल्लाह कहते हैं वो छोड़ जाता है पीछे अपने मोहल्लात, अपने बागात, अल्लाह अकबर, हर चीज़ जो थी जिसको अपने वो खुदाई का ज़रिया समझता था, वो सारी उसने खुद ही छोड़ी और मेरे अल्लाह के हुक्म पर खुद ही तबाही की घाटे में जा निकला। तो अल्लाह फरमा रहे हैं और क्या, इन लोगों ने कभी सोचा नहीं, इनके रफ़ीक पर जुनून का कोई असर नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लोग मजनून कहते या दीवाना कहते तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, भाई कल ही वो बंदा जो तुम्हारे अंदर 40 साल तक सादक और अमीन की हैसियत से रहा, जिसको तुम इतनी रिस्पेक्ट देते थे कल तक, कि वो जिसके हिजरे असद रखने पर, यानी 4 कबीलों में जंग होती है और हमने वो पढ़ा शुरू में कि वो खून के प्याले में हाथ डाल लेते हैं कि हम मर जाएँगे लेकिन हिजरे असद हम ही रखेंगे जब काबा की तमीर हुई है। तो एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी-सी उम्र के थे। इतनी उनके अल्हम्दुलिल्लाह सबके नज़र में कदर थी कि हज़ूर ने इतने बड़े झगड़े से सबको बचाया। वो पत्थर उठा कर के बड़ी हिकमत के फ़ैसले के साथ खुद रखा। तो वो जो बचपन से ही थे तुम्हारे लोगों के मुआशरे के अंदर, तुम्हारे माहौल में इतना कदर वाला, इतना सच्चा और अमीन, आज तुम उसको दीवाना कह रहे हो। किस वजह से? कि वो अल्लाह का कलाम लेके आया है। तो कितना नादान है ये इंसान, कुछ चीज़ सही चीज़ को समझ नहीं पा रहा। वो तो एक खबरदार करने वाला है। तो बुरा अंजाम सामने आने से पहले साफ-साफ मुतनब्बे कर रहा है। क्या इन लोगों ने आसमान और ज़मीन के इंतज़ाम में कभी गौर नहीं किया? और किसी चीज़ को भी जो खुदा ने पैदा की है, आँखें खोल कर नहीं देखा? और क्या ये भी उन्होंने नहीं सोचा कि शायद इनकी मोहलत ज़िंदगी पूरी होने का वक़्त करीब आ लगा हो? हाय अल्लाह! हमें ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए। बेशक अल्लाह किसी को वार्न कर रहे हैं, लेकिन हमें सोचना ये चाहिए कि शायद ये रमज़ान मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। बहुत कितनी दुनिया पिछले रमज़ान में थी और आज नहीं है। तो मुझे किस तरह ये रमज़ान गुज़ारना है? जैसे आखिरी नमाज़ बंदा पढ़ता है ज़िंदगी की, बड़ी खुशू के साथ, खौफ़ के साथ, मोहब्बत के साथ, क्योंकि इसके साथ मैं दुनिया से जाने वाला हूँ और वो मेरी नमाज़ बड़ा सरमाया मेरी कब्र का हो और हश्र का हो। इसी तरह हमारे अंदर ये सोच होनी चाहिए कि हाँ, अपनी इबादत को, अपने रमज़ान को, अपनी नमाज़ों, अपने कुरान को इतने खुशू और गहराई से पढ़ें, जैसे शायद इसके बाद मुझे मौका ना मिले, तो मुझे इसी दफ़ा में सब कुछ अल्लाह से खरीदारी कर लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर चीज़ के नेगेटिव और पॉज़िटिव दोनों ही पहलू हैं। अल्लाह करे कि हम हर चीज़ से पॉज़िटिव पहलू लेकर के अपनी ज़िंदगियों में नाफ़िज़ करें। फिर आखिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तंबीह के बाद और कौन-सी बात ऐसी हो सकती है जिस पर ये ईमान लाएँ? जवाब, आमन्ना बिल्लाह। जिसको अल्लाह रहनुमाई से महरूम कर दे, उसके लिए फिर कोई रहनुमा नहीं है और अल्लाह इन्हें इनकी सरकशी ही में भटकता हुआ छोड़े देता है। ये लोग तुमसे पूछते हैं, आखिर वो क़यामत की घड़ी कब नाज़िल होगी? कहो उसका इल्म मेरे रब ही के पास है। उसे अपने वक़्त पर वही ज़ाहिर करेगा। आसमान और ज़मीन में वो बड़ा सख्त वक़्त होगा। वो तुम पर अचानक आ जाएगा। ये लोग उसके मुतालिक तुमसे इसलिए पूछते हैं गोया कि तुम इसकी खोज में लगे हुए हो। कहो इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, मगर अक्सर लोग इस हकीकत से नावाकिफ हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि मैं अपनी ज़ात के लिए किसी नफ़ा और नुकसान का अख्तियार नहीं रखता। अल्लाह ही जो कुछ चाहता है वो होता है, और अगर मुझे गैब का इल्म होता तो मैं बहुत से फ़ायदे अपने लिए हासिल कर लेता और मुझे कभी कोई नुकसान ना पहुँचता। मैं तो महज़ एक खबरदार करने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला हूँ, उन लोगों के लिए जो मेरी बात माने। वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी की जिनस से उसका जोड़ा बनाया ताकि इसके पास सुकून हासिल करे। फिर जब मर्द ने औरत को ढांक लिया तो इसे एक खफीफ सा हमल रह गया। चलिए लिए वो चलती फिरती रही। फिर जब बोझल हो गई तो दोनों ने मिलकर अल्लाह अपने रब से दुआ की, अगर तूने हमको अच्छा सा बच्चा दिया तो हम तेरे शुक्रगुजार होंगे। मगर जब अल्लाह ने इनको एक सही सालम बच्चा दे दिया तो इसकी बख्शिश व अनायत में दूसरों को इसका शरीक ठहराने लगे। अल्लाह बहुत बुलंदो बढ़ता है उन मुशरिकाना बातों से जो ये लोग करते हैं। कैसे नादान हैं ये लोग कि उनको खुदा का शरीक ठहराते हैं जो किसी चीज़ को पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं, जो ना इनकी मदद कर सकते हैं और ना आप अपनी मदद ही पर कादिर हैं। अगर तुम इन्हें सीधी राह पर आने की दावत दो तो वो तुम्हारे पीछे ना आए,
तुम ख़्वाह इन्हें पुकारो या खामोश रहो, दोनों सूरतों में तुम्हारे लिए यकसा ही है। अब अल्लाह ताला मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ हमारे दातों खसाइल और हरकतों से एक हमारे जुर्म की निशानदही करते हैं, और वो शिरक है। भई जब हमें कोई मसला पेश आता है तो हम क्या करते हैं? अल्लाह को पुकारते हैं। जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम अल्लाह को कहते हैं, हम अल्लाह हमें दे। तो जब भी अल्लाह ताला अता कर देते हैं तो हम फिर अल्लाह के साथ और भी खुदाओं को ढूँढना शुरू कर देते हैं। इतनी बड़ी इंसाफ़ी को अल्लाह ने बेइंसाफ़ी को ज़ुल्म कहा है कि तुम दे राज़िक वो हो और तुम हिस्से दूसरों के डालते हो। अब जब औलाद हमारी हो है तो औलाद कौन देता है? अल्लाह। और अल्लाह के सिवा कोई औलाद दे नहीं सकता। अल्लाह कहते हैं मैं जिसको चाहूँ बेटे दूँ, बेटियाँ दूँ। 2 इकट्ठे करके और मिक्स करके दूँ, दोनों चीज़ें दे दूँ और चाहूँ जिसको ना दूँ। भई इतना बड़ा ऐलान, इतना बड़ा फ़ैसला जो मेरे रब ने आपके सामने कर दिया, पैदा करने वाले ने, जिसने तुमसे शुरू में अहद ले रखा है कि मैं तुम्हारा रब हूँ। अब तुम इतनी बड़ी बेइंसाफ़ी जब करते हो, तो तुम्हें बिल्कुल भी ख़्याल नहीं आता कि हम ये क्या कर रहे हैं, कैसे हिस्से डाल रहे हैं दूसरों के। तो यहाँ अल्लाह ताला हर बात से हमें समझाना यही चाह रहे हैं कि तौहीद के अलंबरदार बनो, वो एक वक़ार है और तुम्हारे लिए आखिरत की सुरखरुई का ज़रिया है। और शिर्क तुम्हारे लिए तबाहकुन है, दुनिया में भी ज़लील करता है और आखिरत में भी रुसवाई और जहन्नुम है। तुम लोग खुदा को छोड़कर जिन्हें पुकारते हो, वो तो महज़ बंदे हैं, जैसे तुम बंदे हो। इनसे दुआएँ माँग देखो, ये तुम्हारी दुआओं का जवाब देंगे। अगर इनके बारे में तुम्हारे ख़यालात सही हैं, क्या ये पाँव रखते हैं कि उनसे चलें? क्या ये हाथ रखते हैं कि उनके से पकड़ें? क्या ये आँखें रखते हैं कि उनसे देखें? क्या ये कान रखते हैं कि उनसे सुनें? तदब्बुर। अब अल्लाह ताला इस आयत के अंदर हमें बताना ये चाह रहे हैं कि कोई भी एक इंसान है, उसके पास हाथ होते हैं काम करने के लिए, आँखें होती हैं देखने के लिए, कान होते हैं सुनने के लिए। अब एक बंदे के ना पाँव रहे, उसके हाथ भी नहीं है, उसकी आँखें भी नहीं है, कान भी नहीं है, तो वो क्या होगा? एक बेकार चीज़। किसी भी चीज़ के, किसी भी इंसान के कारआमद होने के लिए ज़रूरी है कि उसके अज़ा मुकम्मल हों। जब कोई अज़ा ही नहीं मेरे जिस्म से रहेगा, तो जो मेरा हाथ भी मेरे काट दे, पाँव काट दे, आँखें बंद कर दे, कान बंद कर दे, तो पीछे एक बेकार वजूद रह जाएगा। तो अल्लाह ताला ये बताना ये चाह रहे हैं, भई ये लोगों को आपको क्यों समझ नहीं आती कि ये जो उनको तुम खुदा बनाते हो, क्या इनके पास ये अज़ा हैं? ना खुद ये अपने काम आ सकते हैं, ना ये दूसरों के, जिसके पास अज़ा नहीं है, मुकम्मल इंसान नहीं है जो, तो भाई वो एक बेकार चीज़ है। तो ये तुम्हारे बुत जो हैं एक बेकार चीज़ हैं, इनके पास कोई भी कारआमद चीज़ नहीं है। तो तुम थोड़ा-सा गौर इस पर करो कि ये अल्लाह कोई इनके पास सलाहियत है, कोई तुम्हारी बात का जवाब देते हैं, कोई तुम्हारा काम बिगड़ा बनाते हैं। तो कैसा बेइंसाफ इंसान है, कैसा ज़ालिम इंसान है कि खुद ही एक बेकार चीज़ को बनाता है और उसको खुदा बना के बैठ जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो कि बुला लो अपने ठहराए हुए शरीकों को, फिर तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ तदबीरें करो और मुझे हरगिज़ मोहलत ना दो। मेरा हामी और नासर वो खुदा है जिसने ये किताब नाज़िल की है। वो नेक आदमियों की हमायत करता है। बखिलाफ़ इसके तुम जिन्हें खुदा को छोड़कर पुकारते हो, वो ना तुम्हारी मदद कर सकते हैं और ना खुद अपनी मदद ही करने के काबिल हैं। बल्कि अगर तुम इन्हें सीधी राह पर आने के लिए कहो, तो तुम्हारी बात सुन भी नहीं सकते। बज़ाहिर तुमको ऐसा नज़र आता है वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, मगर फ़िलवाक़े वो कुछ भी नहीं देखते। अल्लाह ताला मिसालों से और किस-किस तरह से बंदे के अंदर एक चीज़ डालना चाहते हैं बड़ी गहराई के साथ। वो ये कि जब भी तुम्हें इतनी बड़ी अज़ीम कायनात की तरफ देखते हो और इसका निज़ाम और इसका सफ़र और इंसान की वजूद को ही देख लो। अल्लाह ताला कहते हैं ना, गौर व फ़िक्र करो, तदब्बुर करो और कायनात पे गौर करो और अल्लाह की आयात पे गौर करो और अनफुस अपने अंदर गौर करो। हर चीज़ के अंदर से तौहीद पुकार-पुकार के कहती है। इतना अज़ीम निज़ाम, इतना अज़ीम इंसान और इसके अंदर उज़्व बनाना किसी इंसान का काम नहीं है और हो ही नहीं सकता। ये एक कादिर मुतलिक जिसने कुन से कायनात बनाई, ये सारी सिफ़ात का मालिक वो है भाई। तो तुम कहाँ से भूले जा रहे हो? इसीलिए अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ एंगल तरीकों से हमारे अंदर तौहीद डालना चाह रहे हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ دیکھیں کوئی خدا نخواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ وہ جاہلوں سے الجھتے تھے، یا شیطان کی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ ہر انسان کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کا شیطان ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ کا بھی شیطان ہے؟ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میرا بھی شیطان، لیکن وہ میری متی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اصلاً یہاں جو بات کا اشارہ دے رہے ہیں وہ یہ کہ جو بھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جاتی ہے وہ ایکچوئل قیامت تک کے ان لوگوں کے جو ایمان لانے والے اور داعی دین کی حیثیت سے ان کی اصلاً یہ تربیت کا ایک پہلو ہے الحمدللہ۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے، کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چکنے ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بھان تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں انتخاب نہ کی؟ ایسے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں، تمہارے رب کی طرف سے ہدایت اور رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ بصیرت کی روشنیاں کیا ہیں؟ قرآن کی آیات، اور سبحان اللہ ہدایت اور رحمت کہ ان آیات کے ذریعے تم رب کی رحمت خریدتے ہو اور صحیح رستہ پاتے ہو۔ یہ رہنما آیات ہیں الحمدللہ اللہ کی کتاب کی ان لوگوں کے لیے جو اب اسے قبول کریں۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحمت ہو جائے۔ یہ ہے قرآن سننے کے آداب کہ جب کتاب اللہ آپ کے سامنے پڑھی جائے تو سننا ہے اسے توجہ سے، کہ سننا قرآن کا مزاج ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا گیا تھا، اور خاموش رہو۔ جب آپ خاموش رہیں گے تو آپ کو اللہ کی بات سننے میں توجہ ہوگی، اور جب آپ پوری توجہ خاموشی سے دو گے تو اللہ کا کلام آپ کے سینے میں اترے گا۔ جب قرآن سینے میں اترتا ہے تو قرآن کے حق کی ادائیگی ہے الحمدللہ۔ اللہ کہتے ہیں شاید تم پہ بھی رحمت ہو جائے۔ اب اللہ میرا رب جو ہے وہ بونڈ نہیں ہے کہ ہم توجہ سے قرآن کو سنیں، پوری جان اس پر مار دیں ہم، تو ہم یہ توقع کریں کہ ہاں جی میرے سارے میرا عمل قبول ہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ بالکل ایکوریٹ ہے اللہ کے نزدیک اور میں پسندیدہ بن گیا ہوں۔ یاد رکھو ایک رب ہے جس کے ہم محتاج ہیں اور کسی کا محتاج نہیں۔ ہم ہر نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے تقبل منا کا دعا کریں گے، کیونکہ اللہ ہمیں کہہ رہے شاید تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ پکا اللہ نہیں کہہ رہے کہ ضروری رحمت ہوگی اتنے کام کے بعد، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے جن پہ تو رحمت برسائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو، کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ جو صبح و شام یاد کرنا، دل ہی دل میں زاری اور خوف، یہ مختلف یہ ہمارے یعنی کسی بھی چیز کے لیے ہمارے اندر سے جو چیز ابھرتی ہے وہ کیا ہے؟ کبھی کبھی ہمارا دل چاہتا ہے ہم دل میں کسی سے باتیں کریں، کبھی ہمارا دل چاہتا ہے تھوڑا ہم بول کے بات کریں، کبھی اونچی آواز سے بات کرنے کو بھی دل چاہتا ہے۔ یہ انسان کے مختلف سٹیجز ہیں بولنے کی، پڑھنے کی، بیان کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہر اینگل میں ہر طرح سے تم مجھے ہی یاد کرو، بس زاری کے ساتھ کبھی رو بھی دیا کرو بھائی، کبھی ایک آنسو بھی نکال دیا کرو اللہ کی یاد میں اور خوف میں، اور یہ احساس کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے مجھے ڈرنا ہے۔ الحمدللہ بے شک میں اللہ کے دربار میں کتنی زاری سے بات کر رہی ہوں، پھر بھی قبولیت اسی کا حق ہے کہ مجھے قبول فرمائے، لیکن میری حالت کچھ ایسی سی ضرور ہونی چاہیے جو اللہ نے گن گن کی یہاں میں بتا دی ہے۔ تم لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔